جو ہے عورت ہونا خود ہی ایک سب سے بڑا جبر ہے اس سوسائٹی میں، اس معاشرے میں، جہاں پر عورت اپنے گھر سے نکلتی ہے تو وہ عدم تحفظ کا شکار ہوتی ہے. اس لیول سے ہو نہیں سکتا کیونکہ اس کی فاؤنڈیشن، اس کی بیسس اور اس کے دیگر معاملات اسے ختم کرنے تو نہیں دیں گے، لیکن اسے کم کیا جا سکتا ہے. جو پاسبل ہو سکتا ہے اس پر ڈبیٹ ہمیشہ ہوتی رہنی چاہیے کہ جو یہ سیکٹیرین نیچر ہے ہماری پولیٹیکل موومنٹس کی، اسے ختم ہونا چاہیے. ہمیں مل جل کر کام کرنے کی عادت اور روش اختیار کرنا سیکھنا چاہیے. ہم سیکھ سکتے ہیں اپنے ماضی کے تجربات سے، اور ہمیں ماضی کے معاملات سے سیکھ کر آگے بڑھنا چاہیے، کیونکہ اس ریاست میں، پاکستان میں جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ آہستہ آہستہ اسی پریس کلب کے باہر کھڑے ہونے کی اسپیس بھی شرنک کر رہی ہے. ایک زمانہ ہوتا تھا کہ لوگ پرامن طور پر آ کر ان پریس کلب کے سامنے اپنی بات کرتے تھے، لیکن آج یہ شرنک ہو رہا ہے. یہ اسپیس بھی پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار کوئٹہ پریس کلب پر تالے لگ چکے تھے، اور 2 دفعہ ہم نے دیکھا کہ کراچی پریس کلب کو کارڈن آف کر دیا گیا تھا 2 دفعہ. تو یہ اسپیس بھی آپ سے چھن رہی ہے. تو اس لیے ہمیں اپنی شناخت کو برقرار رکھتے ہوئے، اپنی آئیڈینٹی کو برقرار رکھتے ہوئے دیگر مظلوم، محکوم، مجبور طبقات کے ساتھ بھی بات کرنی چاہیے. یہاں پر کسی نے کینال کا ذکر کیا. کیا وجہ ہے کہ کراچی بلوچوں کا سب سے بڑا شہر ہے پوری دنیا میں اور کینال پر ہم لوگ خاموش ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ کراچی پشتونوں کا سب سے بڑا شہر ہے پوری دنیا میں، نہ کابل ہے نہ پشاور ہے، لیکن کینال کا مسئلہ کیا صرف سندھیوں کا مسئلہ ہے؟ پانی نہیں ملے گا تو مجھے بھی نہیں ملے گا، میں بھی اسی شہر میں رہتا ہوں، اور پھر مجھے ملے یا نہ ملے، کیا ایک پرنسپلی ہمارا یہ اسٹانس نہیں ہونا چاہیے کہ جو پانی پر چوری ہے، یہ جو ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے پنجاب کی طرف سے چولستان کینال کے نام پر، کیا اسے ریزسٹ نہیں کرنا چاہیے؟ اگر میں کوئٹہ میں بھی رہتا تو مجھے ریزسٹ کرنا چاہیے تھا. میں اگر گوادر میں، تربت میں بھی رہتا، میں اگر کہیں بھی رہتا، پشاور میں بھی رہتا، میں اسلام آباد میں بھی رہتا، تو مجھے پانی کے اس مسئلے کو ریزسٹ کرنا چاہیے، ہمیں بات کرنی چاہیے. لیکن ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہمارا ایشو نہیں ہے. پی ٹی ایم کے مسئلے پی ٹی ایم کے ہیں، منظور پشتین کے ایشوز ہیں. اگر پارا چنار میں کسی کو مارا جاتا ہے تو وہ بھی میرا ایشو ہے. ایک کا زخم سب کا زخم. اپنی پولیٹیکل آئیڈینٹی کو، اپنے اس سیکٹرین ہول سے باہر نکل کر ہمیں سولیڈیرٹی کرنا سیکھنا چاہیے. آج ہم میرابل فیملی پر بات کر رہے ہیں، پھر ہمارا کیا تعلق بنتا ہے؟ ڈومینیکن ریپبلک ایک لیٹن امریکن کنٹری ہے، ہم کیوں ڈسکس کر رہے ہیں اس سے؟ ہم انہیں کیوں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں؟ کیونکہ وہ ایک پولیٹیکل ریزسٹنس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. آج اگر پی ٹی ایم کے لوگ ہوں، چاہے بی وائی سی کے لوگ ہوں، چاہے سندھیانی تحریک کے لوگ ہوں، چاہے کوئی اور جو بھی تحریکیں یہاں پر ریاست کی بربریت کے خلاف چل رہی ہیں، ظلم و ستم کے خلاف چل رہی ہیں، ہمیں ان پر بھی بات کرنی چاہیے. ہمارا ٹویٹر میسج ان پر بھی آنا چاہیے. میں اپنی کیپیسٹی میں تو کرتا ہوں، ظاہر میں ایک ٹیچر ہونے کے ناطے جو کر سکتا ہوں وہ کرتا ہوں، چاہے وہ پارا چنار کے اہل تشیع ہو، چاہے وہ سندھ کے پانی کا مسئلہ ہو، چاہے وہ بلوچوں کا مسئلہ ہو، چاہے وہ دیگر کمیونٹیز کا مسئلہ ہو، چاہے وہ لوکل ایشوز ہو کراچی کے. ہمیں ان سب ایشوز کو، چاہے وہ لیبر کا مسئلہ ہو، میں اگر کہوں کہ نہیں میں تو ٹیچر ہوں، میرا تو لیبر سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو ایسا ہوتا نہیں اور نہیں نہ ایسا ہونا چاہیے. میں اگر کہوں کہ چونکہ میری قومیت یہ نہیں ہے، میں شیعہ نہیں ہوں، تو مجھے شیعوں پر خاموش رہنا چاہیے. میں پشتون نہیں ہوں، مجھے پشتونوں پر خاموش رہنا چاہیے. میں سندھی نہیں ہوں، مجھے سندھیوں پر خاموش رہنا چاہیے. میں بلوچ نہیں ہوں، مجھے بلوچوں پر خاموش رہنا چاہیے. تو سیاست ایسے نہیں ہوتی ہے. ہم جب ابھی ہمارے دوست عامر حسینی نے بہت اچھی نثری نظم اپنے فیس بک وال پر شیئر کی، اس نے کہا ہم سب کے اپنے اپنے مضمون ہیں. جو کمپارٹمنٹلائزیشن ہے، یہ جو تقسیم در تقسیم اور خانوں میں جو ہم نے تقسیم کیا ہوا ہے ان تحریکوں کو، فلاں کمیونٹی کی تحریک صرف فلاں ہی کے لیے ہے، ہم اس پر خاموش رہیں گے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. بلکہ ڈاکٹر شاہنواز قنبر کا مسئلہ ہے تو وہ بھی میرا مسئلہ ہے، رواداری کا مسئلہ ہے نا، ریلیجیس ایکسٹریمزم کا مسئلہ ہے نا. ہمارا پرنسپل ڈاکٹر شاہنواز قنبر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس ریلیجیس ایکسٹریمزم کو کرٹیسائز کرنا چاہیے، چاہے وہ کسی سندھی کے ساتھ ہو، بلوچ کے ساتھ ہو.
ہمیں ایکسٹریمزم کو کرٹیسائز کرنے کی ضرورت ہے. اس دور کی سسٹرز تھی, اس دور کی عامر سے وہ لڑی تھی, تو وہ تب کے عامر تھے اور آج کے عامر ہمارے پاس اس ریاست جو ہے, اس ریاست کی شکل میں وہ عامر موجود ہیں. وہ ریاست جس کو ہم ماں کہتے ہیں. میں ایز اے فرد, ایز اے وکٹم, اس ریاست کو میں ماں نہیں سمجھتی. میں اس ریاست کو ایک سامراجی قوت اور ظلم کرنے والے ایک اسٹیٹ, ایک وہ ریاست, وہ عامر جس کے ہاتھ جو ہیں ہر مظلوم, ہر پیڑ جو قومیں ہیں ان قوموں کی رت سے بھرے ہوئے ہیں, انسانوں کی رت سے بھرے ہوئے ہیں. ایسی ریاست یا ایسے گروہ, ایسی ایجنسیاں یا فرد یا تنظیمیں ایسی ریاست کو اگر سپورٹ کرتی ہیں, وہ ریاستیں, وہ فرد, ہم ان ریاستوں کو مجبوراً طور ان کو ہم اچھے لفظ میں یاد نہیں کرتے. ہم صرف اور صرف ان کے لیے ایک تلخ لفظ استعمال کرتے ہیں کیونکہ ہم مجبور ہیں, کیونکہ وہ ایسی ریاست جس نے ہمیں وکٹم بنایا, جس نے ہمیں تکلیف دی, ہمیں عزت دی, ہمیں ایسی تکلیف دی جو کبھی ہم بھول نہیں سکتے. نہ صرف سندھی یا اس ریاست میں جو موجود ہیں, بلوچ, پشتون, ساری صورتحال ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں, ہم دیکھتے ہیں, ہم سنتے ہیں. آیا ایسی ریاست جو ہے, جو پورے طبقے کے ساتھ, ایک مظلوم قوم کے ساتھ, اس کے فرد کے ساتھ ایسا ظلم کرے اور وہ گناہ بھی نہ بتائیں, تو کیسے ایسی ریاست کے لیے ہم ہمدردی کر سکتے ہیں یا کیسے ہم نرم الفاظ استعمال کر سکتے ہیں؟ اس ریاست میں سب کو عزت دی ہے. یہاں پر جو قومیں رہتی ہیں, تکلیف ہمیں ایسی دی ہے, بندہ ایک تکلیف ملتی ہے, ایک فطرت کی طرف سے, قدرت کی طرف سے بندہ قبول کر لیتا ہے کہ آیا یہ قدرت کا فیصلہ تھا, ایک فطرت کا فیصلہ تھا. بندہ سمجھوتا کر لیتا ہے اور اپنی ذاتی زندگی میں مصروف ہو جاتا ہے اور آگے اپنی زندگی کا سفر رواں کرتا ہے. پر یہ جو تکلیف ہے جو ریاست نے ہمیں دی ہے, ہم ہماری فیملی کو دی ہے, ہمارے ساتھ دوسری فیملی کو دی ہے, جو اپنے پیاروں کی تکلیف ہے, ایک صورت جو ان کو جبرن لاپتہ کرتے ہیں, ایک دوسری جو ان کو شہید کر دیتے ہیں, ان کو ٹارچر کرتے ہیں, وہ تکلیف اور جدائی فطرت کی طرف سے ہو تو بندہ قبول کر لے, پر ریاست کی طرف سے ہم کیسے قبول ہیں؟ ہم ایسی ریاست پر صرف اور صرف ایسی ریاست کو ہم اس پر مرامت کی حقدار سمجھتے ہیں کہ وہ ریاست ایک مرامت کی حقدار ہے, اور ہماری طرف سے ہم اس ریاست پر لعنت کرتے ہیں جو مظلوموں کا خون بہاتی ہے. ہم بلوچ ہوں, پشتون ہوں, ہمارا درد جو ہے ایک ہی ہے. اداری بات کی, بہت اچھی باتیں کری, نو ڈاؤٹ. اگر ہم مظلوم جو طبقے ہیں, جو ہم بوڑھے طبقے ہیں اس ریاست کے اندر, اگر ہم اکٹھا ہو جائیں گے مل کر ایسی عامریں, ایسی ریاست اور ایسی خونخوار ریاست جو صرف اور صرف اگر زبان جانتی ہے تو وہ صرف اور صرف رد کا زبان جانتی ہے کہ آیا ہمیں اگر کچھ بھی کرنا ہے, کوئی بھی بات کرنی ہے تو انسانوں کی رد جو ہے وہ بہانی ہے, انسانوں کا خون بہانا ہے. تو اسی ریاست کے لیے ہم بلوچوں کو, ہم پشتونوں کو اور جو بھی مظلوم طبقہ ہے اکٹھا ہو کر ایسی ریاستیں
वो डिफरेंट कौन हो, अगर नहीं करेंगे, हम एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे, तो ये जो सिलसिला है इसी तरह से दबा दबा होगा। कल हमारे वहाँ के शागिर्द को एनकाउंटर करके पंजाब में मारा जाता है, 12 महीने वो जबरन लापता होता है और उसका फेक एनकाउंटर पंजाब पुलिस दिखाती है कि हमने दाऊदा हमने इसको मारा, जिसकी पिटीशन सिंध हाई कोर्ट में मौजूद है। जैसे हिदायत लोहार को कत्ल किया, मोहम्मद चौधरी को कत्ल किया, मुजफ्फर भुट्टो को कत्ल किया। ये जो सिलसिला है वो आहिस्तगी से वो टारगेट करके वो रवा दवा है। मतलब हमारे सिंध के अंदर या दीगर सूबों के अंदर जो भी कौम अपने फर्द के लिए, अपने कौमों के लिए आवाज उठाएंगे, उनको कुचला जाएगा, क्योंकि रियासत चाहती है आपको आपके हक नहीं दिए जाएंगे। चलो हम अगर बलोचों की बात करें, सिंध की बात करें, उनको जबरन लापता करते हैं, उनको मारते हैं, उन पर तशद्दुद करते हैं, कहते हैं कि वो तो पाकिस्तान से अलग ही मांग रहे हैं, वो तो आज़ादी चाहते हैं, वो इस वजह से हम उनको टारगेट करते हैं, उनको मारते हैं, उनको शहीद करते हैं। अब आप देखिए खैबर पख्तूनख्वा में आप हालात अभी आप देख सकते हैं कि कितनी उन लोगों ने तशद्दुद का इस्तेमाल किया है, कितनी फोर्स इस्तेमाल करी हुई है। नो डाउट हम किसी हुकूमत को सपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन ये सिलसिला जो है ना सिर्फ उन तंजीमों से या उन कौमों के साथ है जो अपने वतन की आज़ादी चाहते हैं, पर ये हर उस फर्द के साथ, हर उस तंजीम के साथ करते हैं। अगर पठान वो इक़्तिदार में अपनी अक्सरियत में आ चुके हैं तो आप देख लें अपने फोर्स का, अपनी बंदूक का, वो हथियार का कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरह से इस वक्त बलोचिस्तान, पिंडी के सारे रास्ते बंद किए गए हैं। सिर्फ ये बहाना मांगते हैं कि भाई बलोच आज़ादी पसंद है, सिंधी आज़ादी पसंद है, इस वजह से हम उन पर तशद्दुद करते हैं, उनको मारते हैं। अगर उन्होंने कुछ किया होगा तो अभी खैबर पख्तूनख्वा में पठानों ने क्या किया है, वो तो अपना आपके आईनी हुकूक मांग रहे हैं, उनको आईनी हुकूक थे, लेकिन उन पर भी वो सारे वो चीज़ें वो इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी फोर्स इस्तेमाल कर रही है। मतलब इनको कबूल नहीं है। इस मुल्क को चलाने वाली रियासत फौज है, वो एजेंसी है, वो चाहती है कि जो भी हो वो हमारे फायदे में हो। मतलब वो चाहती है कि भाई बलोचिस्तान के मसाइल हमारे पास हैं, सिंध के मसाइल हमारे पास हैं, लेकिन उनको कुछ ना दिया जाए। हमारे लोग बेरोजगारी की वजह से जो है खुदकशी करते हैं, ये हालात है। तो इस हालात से गुजर कर आए दिन हमें मारा जाता है, तो बंदा लाजिम है बैठ कर जदोजहद करेगा, वो मज़ाहमत करेगा। अब पानी का मसला चल रहा है, देखिए सिचुएशन देखें तो पंजाब किस तरह से मुनाफिकत कर रहा है। सकरन के अंदर जो हमारी आबाद जमीनें हैं, अब देखें कितनी मुनाफिकत है। सकरन के अंदर आबाद जो जमीनें हैं उनको जोरी जबरदस्ती फौज हथियार के जोर पर अपने मकामी लोगों से खरीद रही है। आप नहीं देंगे, आपको मार करके चीजें हम अपने कब्जे में कर लेंगे। वो आबाद जमीनों को वो गैराबाद कर रही है, उसको बिल्कुल बर्बाद करके वो अपनी शान बना रही है। और दूसरी तरफ आप देखिए सिंध का पानी रोककर वो पंजाब चौलिस्तान की जमीनें आबाद करती हैं। सो ये शर्मनाक बात है, यहाँ की रियासत को शर्म करवानी नहीं है, लेकिन हम अपने लोग को गुजारिश करते हैं कि ये डिफरेंस देखें। एक पंजाब की आप गैराबाद जमीन को आबाद करने के लिए आप सिंध को जो है बिल्कुल बर्बाद बना रहे हैं, उसका पानी जो है वो छीन रहे हैं, वो चोरी कर रहे हैं और हमारी जो आबाद जमीन है उनको गैराबाद कर रहे हैं। सो ये रवैया रियासत का शुरू से ऐसा रहा है। सो इस रियासत से कोई उम्मीद, किसी हक की उम्मीद नहीं कर सकते कि वो हमें कोई हक देगा। आया हम जो है लड़ते आए हैं और अपने वतन के लिए, अपने वसाइल के लिए, अपने पानी के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने हक के लिए हम लड़ेंगे। अगर हम लड़ेंगे नहीं तो हमें ये रियासत ही मार देगी। सो मुझे मौका दिया, बहुत शुक्रिया आप सब साथियों का। जी हसन, जी लतीफ, जी आना। बहुत शुक्रिया। सोसाइटी के लिए जो है वो हम जदोजहद करते रहेंगे और अपनी जानें भी जो है उसके लिए देते रहेंगे। ये थी सूरत। अब मैं एक और तवाना आवाज़ जो जदोजहद मज़ाहमत का रंग है और जिसको हम सब ने देखा भी टीवी पे, जो हालिया मिसाल है हमारे सामने, समी बलोच से मैं गुजारिश करूँगी कि अभी जदोजहद और
बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ आप सबका जिन्होंने मुझे मौका दिया आज के इस प्रोग्राम में बात करने के लिए। चूँकि आज का मौजू है हरासगी, तशद्दुद और जबर के ख़िलाफ़ और उन आमलों के सामने उस मुज़ाहिमती अमल उन किरदारों के हवाले से है। तो ये माजी में किरदारें बहुत सारी हैं मुज़ाहिमत की, लेकिन आज जो हम मुज़ाहिमत की किरदारें देख रहे हैं और उसके सामने जो रियासती जबर है, रियासती तशद्दुद है, उसको हम देख रहे हैं। तो जिस तरह हमारे मोअज़्ज़िज़ स्पीकर्स बात कर रहे थे, तो पूरा जो है जो वाक़या है, जो इन सिस्टर्स के हवाले से बात कर रहे थे, इनका पूरा वाक़या मुझे आज के दिन, आज के दौर की अक्कासी कर रही थी मेरे सामने। मैं बलूचिस्तान की वो मज़लूम बेटी हूँ, हम वो मज़लूम माएँ, बहनें और बेटियाँ हैं जिन्होंने अपना बचपन सड़कों पर प्रेस क्लबों के सामने से गुजारा। जो हमारे दीगर साथी स्कूल जाते थे, हमारे दीगर साथी अपने दोस्तों के साथ खेलते थे और हम प्रेस क्लबों के सामने एहतजाज पर बैठे अपने प्यारों की तस्वीर लिए उनकी वापसी के लिए मुंतज़िर थे। जहाँ तशद्दुद की बात होती है तो वहाँ बलूचिस्तान नहीं बल्कि पूरे मुल्क में जितने अक़वाम हैं, चाहे उनमें सिंधी हो, सराइकी हो, पश्तून हो, इवन पंजाबी भी, उनमें हर एक मज़लूम, हर एक तबका जो है उसके सामने से मज़लूमियत नज़र आती है। हमारी तरफ से देखते हैं कि आज ख़वातीन किस तरीके से न सिर्फ लेबर्स हों, न सिर्फ वो जो है वो बच्चियाँ जो स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ती हैं, वो बच्चियाँ जिनके हॉस्टल्स में कैमरे नस्ब किए गए हैं, वो बच्चियाँ जिनको रोडों और सड़कों पर घसीटा जाता है, वो माएँ और बहनें जिनको अपने प्यारों की बाजियाबी के लिए, उनकी आज़ादी और सलामती के लिए एहतजाज पर सड़कों पर आते हैं तो उनको गिरफ्तार किया जाता है, उनको मारा जाता है, उनको पीटा जाता है, उनको घसीटा जाता है। हम एक ऐसे कॉलोनाइज माशरे में रह रहे हैं जहाँ पर हम हर तरह से, कभी कभार मैं अपने साथियों से बात करती हूँ कि जो है औरत होना खुद ही एक सबसे बड़ा जबर है इस सोसाइटी में, इस माशरे में, जहाँ पर औरत अपने घर से निकलती है तो वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होती है। उस लेवल से लेकर अपने घर के अंदर से, अपने तालीमी इदारों में, अपने जो है सर्कल्स में, बाजारों, सड़कों से लेकर वो जहाँ रियासत की बात होती है, जहाँ रियासत को एक माँ का दर्जा दिया जाता है, वहाँ पर भी रियासत का रवैया जो उन ख़वातीन के साथ, उन्हीं माँओं और बच्चियों के साथ तशद्दुद का रास्ता होता है। उनके साथ उन आवाज़ों को बजाय सुनने के लिए उन आवाज़ों को कुचलने की कोशिश की जाती है। जहाँ आज जो है अज़ियत की बात चल रही थी तो मेरे जहन में बलूचिस्तान के ऐसे कई वाक़यात मेरे सामने वापस ताज़ा हो रहे थे मेरे जहन में। मैं बलूचिस्तान की उन माँओं को याद कर रही थी कि जिनको पता ही नहीं होता था कि उनके बच्चों को किस तारीख में उठाया गया है। जब हम मिसिंग पर्सन्स की डेटा कलेक्शन के लिए आते थे तो हम उनसे पूछते थे कि आपके बच्चे की जबरी गुमशुदगी की तारीख क्या है, तो वो कहते थे कि फ़िलान साल में, फ़िलान कोई रमज़ान के वक्त, ईद के दिनों में हम जो है इस दौर में हमारे बच्चे को उठाया गया। आप इस जबर और अज़ियत को देखें कि एक माँ जो कभी अपने घरों से नहीं निकली है, वो आज इस कदर मजबूर है कि वो सड़कों पर आई है, वो अपने गुमशुदा बच्चे की जबरी गुमशुदगी के केस को दर्ज करने के लिए आई है, लेकिन उसे इस हद तक नहीं पता है कि उसके बेटे की जबरी गुमशुदगी की तारीख क्या है। मैं अपनी जो है उस दादी को, जो मेरे वालिद की जबरी गुमशुदगी के बाद मैं उसकी दर्द और उसकी तकलीफ को, मैं उसकी अज़ियत को शायद जब तक जिंदा
जिंदा हूँ मैं कभी नहीं भूल सकूं कि उनके वो अल्फाज जब वो मेरे जबरी तौर पर गुमशुदा बाबा के लिए कहते थे, वो मेरे बड़े चाचा से आकर कहते थे कि आप मुझे झूठी खबर तो दे दें ताकि मेरे दिल को थोड़ी तो तसल्ली हो, मैं एक लम्हे के लिए कम से कम मैं चैन से सुकून से सांस लूं, एक लम्हे के लिए मुझे महसूस हो कि मैं जिंदा हूँ, मैं जी रही हूँ। आप उस माँ की अजियत को देखें, वो हकीकत को जानती है, वो हकीकत को तस्लीम भी कर रही है, फिर भी वो कह रही है कि आप मुझे एक झूठ तो बता दें। मुझे याद है जब वो मेरे अंकल वो जो है क्वेटा और कराची में जब मेरे वालिद साहब की जब भी गुमशुदगी के हवाले से अदालतों में पेशियों के सिलसिले से वापस आते थे, तो मेरी दादी सुबह जाकर उनके कमरे में उनके दरवाजे पर बैठती थी, दरवाजे के सामने बैठती थी, और जब वो नींद से उठते थे सबसे पहले उनके पास जाके कहती थी, मुझे कुछ तो बता दें उनके बारे में, आप शहर से आए हैं, कोई तो मालूमात होगी आपके पास। और वो अल्फाज, वो थरथराते हुए अल्फाज, वो सुसक के जिस अजियत के साथ कह रहे थे कि आप मेरी दर्द और तकलीफ को महसूस नहीं कर सकते, मैं माँ हूँ, मेरा बेटा गायब है, मैं जब अपने बेटे की गुमशुदगी को याद करती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं वापस अपने बच्चे को पैदा कर रही हूँ, मुझे वही पेन फील होती है जब मैं अपने बच्चे की जब की गुमशुदगी को याद करती हूँ। एक माँ जो जीती जागती है, जिसका नौजवान बेटा वो सालों से गायब है, उस माँ की अजियत, उसकी दर्द, उसकी कैफियत का अंदाजा लगाएं कि वो कहती है कि मैं उस दर्द से गुजर रही हूँ जिस वक्त जो है औरतें बच्चा पैदा करने के वक्त जिस दर्द और तकलीफ से गुजर रही होती हैं। तो जब भी गुमशुदगी का वाक़या बलूचिस्तान में एक ऐसा अलमिया है कि उसमें बलूचिस्तान के हर एक माँ, हर एक बहन, हर एक औरत को न सिर्फ सड़कों पर घसीटा है बल्कि उनकी जिंदगियों को हर तरह से मुतासर किया है। वो अपने लिए जीना ही भूल गए हैं, वो उनकी जिम्मेदारियां दूसरी और तीसरी हो गई हैं। एक खवातीन जिसका घर का सरबराह गायब है, वो कमाती भी खुद है, वो अपने घर का सरबराह भी खुद बनती है, वो अपने बच्चों को पढ़ाती खुद है, वो अपने बच्चों की तरबियत भी उसने खुद करना है, अब खुद को देखना होता है, अपनी फैमिली को देखना होता है। आप उस औरत की इज्जत और तकलीफ को देखें। और फिर जब यही जब भी गुमशुदगी के हवाले से हुकूमत की तरफ से जो बयानियां सामने आती है, कहते हैं कि जी ये लोग दहशतगर्द हैं या ये लोग जबरी तौर पर गायब नहीं हैं, या हालिया दिनों में ख्वाजा आसिफ का जो एक बयान आया था कि ये वही मिसिंग पर्सन है जो है खुदकुश हमलों में नजर आते हैं। तो जब इस तरह की बातों को मैं देखती हूँ इन हुकूमती लोगों की तरफ से, तो मुझे उनकी इस खुशामदी पे तरस आने लगता है कि ये बेचारे किस हद तक मजबूर हैं। ये तो वो सच भी नहीं कह सकते जो सच हम कह सकते हैं। हम इक़्तिदार पे कुर्सी पे बैठने वाले लोग वो जानते हैं सच क्या है, वो हकीकत को समझते हैं, लेकिन वो बोल नहीं सकते, उनके जो कान बंद हैं, उनकी आंखें बंद हैं, उनकी ज़बान खामोश है, वो किसी की खुशामद में कुछ भी बोल रहे हैं। तो मैं उस दिन खुद को जो है उससे बदतर महसूस कर रही थी कि कम से कम हम किसी के जो है इख्तियार में हमारा कहना और ना कहना तो नहीं है, कम से कम हम कहने के लिए तो आज़ाद हैं, हम बोल तो सकते हैं। फिर जब हमारी बलूचिस्तान की माओं की मुजालमत की बातें जब पूरे पाकिस्तान समेत दुनिया में आलमी सतह पर जब उजागर होती हैं, तो बहुत सारे सहाफ़ी हमसे ये सवाल करते हैं कि किस तरह जो है बलूचिस्तान में ख़वातीन की ये तहरीक इस तरह अचानक से उभरी है। मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि बलूचिस्तान की ये जो तहरीक है ये दहाइयों से, सदियों से चली तहरीक है। आप दहाइयों को छोड़ें, आप सदियों को छोड़ें, सिर्फ गुज़िश्ता 20 सालों से आप बलूचिस्तान की उन माओं की तहरीक को, उन
बलूचिस्तान में एक परिंदा भी उड़ते वक्त जो है वहाँ के मिलिट्री ग्रुप से इजाजत लेकर वो उड़ता था, लेकिन वहीं पर माएँ अपने गुमशुदा बच्चों की तस्वीरें लिए वो एहतजाज पर बैठी होती थी। जिस तरीके से रियासत बलूच औरत हो या वो तमाम मौसर आवाजें जो ख़वातीन के हकूक़ के लिए खड़ी हैं, जो आवाज़ उठा रही हैं, वो हर तरीके से वो रुकावटों का सामना कर रही हैं, हर किस्म की मुश्किलात का सामना कर रही हैं। मैं खुद इस रास्ते में मैंने बहुत कुछ खोया है, इस रास्ते में मैंने बहुत सारी तकलीफियाँ देखी हैं, लेकिन एक रास्ते में एक ही चीज़ जो आपके ज़मीर को मुतमईन करती है वो ये है कि आप खामोश नहीं हैं, आप मायूस नहीं हैं। और जब हम तारीख के सफ़ों को देखते हैं तो वहाँ पे ये अंदाज़ा होता है कि तारीख सिर्फ बोलने वालों को, बगावत करने वालों को याद रखती है, वहाँ पर वो खामोश करने वालों के लिए, खामोश होने वालों के लिए उन सफ़ात में कोई जगह नहीं है। तो लिहाजा आज के दौर में अगर हमने जीना है तो हमें अपने लिए, अपने लोगों के लिए, आज मैं बहुत फख्र से ये बात कह सकती हूँ कि बलूचिस्तान की वो माएँ जो झोंपड़ियों से निकल आई हैं, आज वो अपने बेटों की, अपने भाइयों की आज़ादी की जंग लड़ रही हैं। आज बलूचिस्तान की वो माएँ अपनी सकाफत, अपनी बुनियादी हकूक़ सियासी प्लेटफॉर्म्स पर हर शब्द में सबसे आगे हैं, सबके सामने वो ये दिखा रही हैं कि मैं बलूचिस्तान से हूँ, मैं एक पसमानदा इलाके से हूँ जहाँ मेरे सूबे को सबसे ज़्यादा कॉलोनाइज किया गया है, मैं उस सूबे से हूँ, लेकिन फिर भी मैं मुज़ाहिमत करना जानती हूँ। और रियासती रवैया, शिकस्त खोरदा रियासती रवैया जिस तरीके से आज बलूचिस्तान की ख़वातीन की इस तहरीक से शिकस्त खोरदा है, जब हम इतनी बड़ी रियासती मशीनरी को देखते हैं कि वो आज इस बात के पीछे पड़ी है कि मैं किस तरीके से महरम को, मैं किस तरीके से समी को उनके ऊपर झूठे मुकदमात बना के, उनको एयरपोर्ट से रोक के, उनको रास्तों पे रोक के, उनके घरों पे छापे मार के, उनकी जो है तस्वीरें लीक करके किस तरीके से उनकी आवाज़ को दबाना है। जब हम ये चीज़ें देखते हैं तो ये चीज़ें हमें खौफजदा नहीं करती हैं, ये चीज़ें हमें कमज़ोर नहीं करती हैं, बल्कि ये चीज़ें हमें मज़ीद तवाना करती हैं। और ये रियासत समझ नहीं रही है, हमने बार-बार इस रियासत से कहा है, आज पाकिस्तान के वो थिंक टैंक्स जो बलूचिस्तान में फौजी ऑपरेशन की जो है ख्वाहिश का इजहार करते हैं, हम उनसे कहते हैं कि आपने बलूचिस्तान की तारीख में पढ़ा नहीं है। हमने आपसे बार-बार कहा है कि बलूचिस्तान आपके हाथों से निकल रही है, बलूचिस्तान को आप संभालें, बलूचिस्तान के लोगों के साथ आप बात करें, लेकिन आपने कहा ये 2-4 लोग हैं। आज बलूचिस्तान के जिस हालात, जिस नहज पर पहुंचे हैं, इस सब के जिम्मेदार वो पाकिस्तान के थिंक टैंक्स हैं, वो पॉलिसी मेकर्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान को इस नहज पे पहुंचाया है। और फिर यही नाम नवाज सहाफ़ी इन्हीं प्रेस क्लबों में आके मुझसे और मोहरम से इस तरह के वाक़ियात की मजम्मत करवाती हैं। ये तरीका हमने पाकिस्तान की मीडिया हो या यहाँ दीगर इदारे हों, जिस तरीके से औरत की इस तहरीक को कुचलने की कोशिश है वो हर तरीके से सामने है, लेकिन एक चीज़ के हवाले से हम बहुत ज़्यादा पैरमान हैं, हम बहुत ज़्यादा इस हवाले से मुतमईन भी हैं कि हमारी इस आइन की, इस कानून की जंग हमेशा से है। और एक बात जो बलूच ख़वातीन के हवाले से जाहिर की जाती है कि बलूच औरतें फेमिनिज्म पे यकीन नहीं रखती हैं, आज उन सबसे कहना चाहती हूँ कि मैं समझती हूँ मेरी नज़र में जो सबसे बड़ी फेमिनिस्ट है वो बलूच औरतें हैं। वो बलूच औरतें जो अपने घरों में न सिर्फ अपने भाइयों की बाजियाबी के लिए निकली हैं, आज वो हर शोबे में, सियासत के, यूनिवर्सिटी में, सेहत के हवाले से, तालीम के हवाले से, अपनी बुनियादी हकूक़ के हवाले से हर उस जगह पर आवाज़ उठा रही हैं जहाँ पर शायद ये तवक्को की जाती थी कि बलूच औरतें कभी यहाँ तक नहीं पहुँच सकती हैं। और एक आखिरी बात, जहाँ मुज़ाहिमत की बात आती है तो आज बलूचिस्तान की वो शक्ल पूरी दुनिया के सामने है कि
کہ ریاست جس طریقے سے جس حد تک آوازوں کو دبانے کی کوشش کرتی ہے اس حد تک آوازیں ابھریں گی اور اس کی شکل بلوچستان کی آج وہ خواتین کی تحریکیں ہیں جو ہم سب کے سامنے عیان ہیں، جو ہم سب کے ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اس طریقے سے ریاست سمجھتی ہے کہ ہمیں ڈرا کے، ریاست سمجھتی ہے کہ ہمیں بیچ چوراہے پہ رات کے 2 بجے ہماری جو گاڑیوں کو روک کے وہاں پہ ہمیں ہراس کر کے، وہاں پہ ہمارے پاؤں کو جو ہے چھون کے، وہاں پہ ہماری جو ہے گاڑی کی سیٹس کھول کے وہاں پہ ہمیں ہراس کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ تو وہاں پہ اس ریاست سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ تاریخ کے صفحوں کو نہیں پڑھ رہے ہیں۔ اگر آپ تاریخ کو دیکھتے ہیں تو آپ اس واقعے کو یاد رکھیں کہ سندھ کی بیٹی ڈاکٹر شازیہ مری کے ساتھ جب ایک واقعہ ہوتا ہے تو پوری ایک تحریک بلوچستان میں ابھرنے لگتی ہے۔ نواب اکبر بھٹی اپنی جان سے دریغ نہیں کریں گے، لیکن وہ ڈاکٹر شازیہ مری کے ساتھ اس غیر ناروا سلوک کے حوالے سے وہ آواز اٹھاتی ہیں اور پھر ان کو شہید کیا جاتا ہے صرف اس حوالے سے، جہاں پر بلوچستان میں ایک نئی تحریک ابھرتی ہے۔ تو آج یہ ریاست بھول رہی ہے کہ آج بلوچستان کی آپ ماؤں کو، بہنوں کو ڈرا رہے ہیں، آپ دھمکا رہے ہیں، آپ بلوچستان کی نوجوانوں کو، آپ بلوچستان کے بچوں کو اکسا رہے ہیں۔ آپ یہ تحریک خود آپ اس کو جو ہے بڑھا رہے ہیں، آپ خود اس کو ابھرنے میں مدد دے رہے ہیں۔ آج یہ ذمہ داری اس ریاست کی ہے کہ بلوچستان کی اس حقوق کی جنگ کو، اس مساوات کی جنگ کو کس طرف لے کے جانا چاہتی ہے۔ ہماری جدوجہد ہمیشہ سے پرامن رہی ہے، ہم ہمیشہ سے پرامن رہے ہیں، لیکن ہم ایک بات واضح کرنا چاہیں گے کہ جب تک ہمارے ساتھ ہونے والی ظلم، جبر اور ناانصافیاں ہو رہی ہیں، ہمارے ساتھ ہوں گی، ان کے خلاف ہم نے آواز اٹھائی ہے اور ہم آواز اٹھائیں گے۔ بہت شکریہ۔